નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને હું છું તમારી સાથે સ્મિતા। આગળ સમાચારમાં વાત કરીએ તો આજે દેશના 1309 રેલવે સ્ટેશનોનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। આજે દેશના 1309 રેલવે સ્ટેશનોના ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। ગુજરાતના 87 રેલવે સ્ટેશનના પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવશે। અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના અંતર્ગત પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવશે। અત્યાધુનિક સુવિધાઓ સાથે પુનઃ વિકાસ કરાશે। આ તમામ સ્ટેશનો ગુજરાતમાં 21 રેલવે સ્ટેશન રીડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવશે। અમદાવાદ ડિઝાઇનના ડિવિઝન 16 રેલવે સ્ટેશન પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ હાજર રહ્યા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। તેમજ આ કાર્યક્રમમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। આજે દેશના 1309 રેલવે સ્ટેશનોના ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। લાઇટિંગ સ્પોટ લાઇટિંગની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવશે। પાર્કિંગ એરિયાને ફરીથી ડિઝાઇન અને સુધારવામાં આવશે। તેમજ સ્ટેશન પરિસરમાં વધુ સારી લાઇટિંગ સ્થાપિત કરવામાં આવશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત છે। અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના અંતર્ગત પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવશે। વેઇટિંગ રૂમ, પ્લેટફોર્મ, રિયાલિટિંગ રૂમ અને ઓફિસમાં વધુ સારું ફર્નિચર કરવામાં આવશે। ગુજરાતના 21 રેલવે સ્ટેશન રીડેવલપ કરવામાં આવશે। અમદાવાદ ડિવિઝનના 16 રેલવે સ્ટેશનનું પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવશે। વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા 16માંથી 9 જેટલા રેલવે સ્ટેશનોનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। વિરમગામ, અસરવા, પાલનપુર રેલવે સ્ટેશનનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ કલોલ, ભુજ, પાટણ અને રેલવે સ્ટેશનનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। હિંમતનગર, ધાંગધ્રા અને ભચાઉ રેલવે સ્ટેશનનું પણ સાથે જ ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। રેલવે સ્ટેશન ફરતા વિસ્તારને સુધારવામાં આવશે। લાઇટિંગ સ્પોટ લાઇટિંગની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે। ત્યારબાદ પાર્કિંગ એરિયાને ફરીથી ડિઝાઇન અને કરીને સુધારવામાં આવશે। સ્ટેશન પરિસરમાં વધુ સારી લાઇટિંગ સ્થાપિત થાય તે માટે વેઇટિંગ રૂમ, પ્લેટફોર્મ, રિરાઇટિંગ રૂમ અને ઓફિસમાં વધુ સારું કામ કરવામાં આવશે। 48.18 લાખના ખર્ચે મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। આજે દેશના 1309 રેલવે સ્ટેશનનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। ગુજરાતના 16 રેલવે સ્ટેશનનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। 25.32 કરોડના ખર્ચે અસારવા રેલવે સ્ટેશનનું કાયા પલટશે। 10.26 કરોડના ખર્ચે મણિનગર રેલવે સ્ટેશન બનાવવામાં આવશે। 48.18 કરોડના ખર્ચે ચાંદલોડિયા રેલવે સ્ટેશન બનાવવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પણ ઉપસ્થિત છે। આજે દેશના 1309 રેલવે સ્ટેશનોનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। આજે દેશના 1309 રેલવે સ્ટેશનોનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત છે। મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। આજે દેશના 1309 રેલવે સ્ટેશનોના ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે રેલવે સ્ટેશનનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। અત્યાધુનિક સુવિધાઓ સાથે પુનઃ વિકાસ કરીને તમામ સ્ટેશનો બનાવવામાં આવશે। અમદાવાદ ડિવિઝનના 16 રેલવે સ્ટેશનનું પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવશે। અમદાવાદના અસરવા રેલવે સ્ટેશન થશે કાયાપલટ। અમદાવાદના વિરમગામ, અસારવા, પાલનપુર રેલવે સ્ટેશનનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। કલોલ, ભુજ, પાટણ રેલવે સ્ટેશનનું પણ ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। રેલવે સ્ટેશનમાં ફરતા વિસ્તારને સુધારવામાં આવશે। ત્યારબાદ લાઇટિંગ, સ્પોટ લાઇટિંગની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। પાર્કિંગ એરિયાને ફરીથી ડિઝાઇન કરી અને સુધારવામાં આવશે। મહત્વના સમાચાર છે। ગુજરાતના 16 રેલવે સ્ટેશનોની કાયાપલટ થશે।
25.32 કરોડના ખર્ચે અસારવા રેલવે સ્ટેશન બનાવાશે. 10.26 કરોડના ખર્ચે મણિનગર રેલવે સ્ટેશન બનાવાશે. મહત્વના સમાચાર છે. આજે દેશના 1309 રેલવે સ્ટેશનોના ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે. માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે. ગુજરાતના 87 રેલવે સ્ટેશનોના પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવશે. અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના અંતર્ગત પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત છે. લાઇટિંગ, સ્પોટ લાઇટિંગની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. તેમજ પાર્કિંગ એરિયાની ફરીથી ડિઝાઇન અને સુધારવામાં આવશે. થોડી જ વારમાં માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે. આજે દેશના 1309 રેલવે સ્ટેશનોના ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે રેલવે સ્ટેશનનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે. થોડા જ સમયમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રેલવે સ્ટેશનનું ભૂમિપૂજન કરશે. તેમજ આજે દેશના 1309 રેલવે સ્ટેશનોનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે. ગુજરાતના 87 રેલવે સ્ટેશનોના પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવશે. અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના અંતર્ગત પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવશે. અત્યાધુનિક સુવિધાઓ સાથે જ પુનઃ વિકાસ કરાશે આ તમામ સ્ટેશનો. ત્યારબાદ ગુજરાતમાં 21 રેલવે સ્ટેશનો રીડેવલપ કરવામાં આવશે. ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सतत प्रयत्नशील परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित कर उनका कायाकल्प किया जा रहा है. और इसी क्रम में आज पूरे भारतवर्ष में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है. इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ. परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभिन्न राज्यों की मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापक गण, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन्स और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं. माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है. उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है. रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है. पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है. इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है. पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9 गुना बढ़कर इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए की गई. प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग. चाहे जम्मू कश्मीर में आज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन रहा हो, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रही 50 वंदे भारत सर्विसेज का काम हो, या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट्स की देश भर में चर्चा है. इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बंधी है.
माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अगले 50 वर्षों की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। ऐसे वर्ल्ड क्लास डिजाइन्स पे काम करके आज 508 स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ले करेंगे। इसीलिए आज हर स्टेशन का पुनर्विकास इस तरह से हो रहा है कि शहर के दोनों भागों को जोड़े, स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में उभरे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हो, सिटी बस, मेट्रो, कार, बाइक, पैदल यात्री सभी आसानी से आ जा सके, नई अर्बन स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं दे सके। हर स्टेशन पर रूफ प्लाजा हो जहां पर वोकल फॉर लोकल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय क्राफ्ट्समैन को नए अवसर मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में अपने विजन पर आधारित 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। कुल 24,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन स्टेशनों पर बच्चे, माताएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, इन सब की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविधाएं दी जाएंगी। इतना ही नहीं, स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मार्गदर्शन रहता है कि विरासत भी विकास भी। आज भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, हाईवेज और वाटरवेज का विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के सपने की एक मजबूत नींव है। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आपके प्रण को साकार करने के लिए हम सभी कृत संकल्प 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी, आपको और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं और हार्दिक आभार करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के क्रम में जिन सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है, आइए नजर डालते हैं इसकी झलक दिखाती एक लघु फिल्म पर। मैं भारत का रेलवे स्टेशन, गरीब, मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा, तो वो भी केवल मुंबई, दिल्ली में होगा। कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट का। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को। देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति।
जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के इस सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते। यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठोलियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे। अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे। यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे। यहाँ सीसीटीवी से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा। और सोचिए, लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों, दिव्यांगों की यात्रा सुखद होंगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशंस। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित प्रकाश व्यवस्था से युक्त होंगे स्टेशंस। और सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। यात्रियों की सुविधा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे। अमृत स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर भी बनेंगे। यहाँ होंगे भव्य रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स। अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियां और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है। उस आत्मविश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। जय हिंद। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर
508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीश्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशंस के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રેલવે સ્ટેશનને લગતા સંબોધન કરી રહ્યા છે। આજે દેશના 1309 રેલવે સ્ટેશનોનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે રેલવે સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે।
તેમણે સંબોધન કર્યું છે કે ભારતના નવા રેલવે સ્ટેશનની કામગીરી હવેથી શરૂ કરવામાં આવશે. અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના અંતર્ગત ફરીથી પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવશે.